जी पढ़ लीजिए। जी जी शुरू फरमाए। वल्क़ियासु नज़ीरुहु, ये तो पढ़ा नहीं था हमने। अच्छा जी। القياس الشرعي نظير كل واحد من التأمل في العقوبات الاحتراز عن أسبابها، والتأمل في حقائق اللغة لاستعارة غيرها لها، فيكون إثبات حجية القياس عقلا بدلالة الإجماع لا بالقياس يلزم له، وبيانه أي بيان القياس بكونه رد الشيء إلى نظيره ثابت في قوله عليه السلام: الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا، ويروى كيلا بكيل ووزنا بوزن مكان قولهم مثلا بمثل، وقول والحنطة يروى بالرفع أي بيع الحنطة بالحنطة، حنطة بيع الحنطة بالحنطة، مثل بمثل، ويروى بالنسب أي بيع الحنطة بالحنطة، والحنطة مكيل قتل بجنسه، وقوله مثلا بمثل حال لما سبق، كأنه قيل بيع الحنطة بالحنطة حال كونهما कौन बैठा है जी? كماثل الفردين. हाँ जी जी। والأهوال شروط والأمر للإيجاب والبيع مباح، فينصرف الأمر إلى الحال التي هي شرط، ويكون المعنى وجوب البيع بشرط التسوية والمماثلة لا وجوب نفس البيع. وأراد القدر يعني الكيل في المكيلات، يعني الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات، بدليل ما ذكر في حديث آخر كيلا بكيل. وأراد بالفضل في قوله والفضل ربا، الفضل على القدر دون نفس الفضل حتى يجوز بيع حفنة، بيع حفنة بحفنتين، وهكذا إلى أن يبلغ نصف صاع، وصار حكم النص وجوب التصفية بينهما في القدر. ثم الحرمة بناء على فوات حكم الأمر، يعني حيثما فاتت التصفية تثبت الحرمة، هذا حكم النص والداعي إليه أي العلة الباعثة على وجوب التصفية القدر والجنس، لأن إيجاب التصفية في القدر بين هذه الأموال يقتضي أن تكون أمثالا متواسية، ولن تكون كذلك إلا بالقدر والجنس، لأن المماثلة تقوم بالصورة والمعنى، وذلك بالقدر والجنس، فبالقدر تكون المماثلة الصورية، وبالجنس تكون المماثلة المعنوية، والجنس مدلول قوله والحنطة بالحنطة، والقدر مدلول قوله مثل بمثل، فإن لم يجد الجنس يوجد فإن لم يوجد الجنس يوجد الجنس جي كالحنطة مع الشعير، أو لم يوجد القدر كما في عدديات لم تشترط المساواة ولا يظهر الربا. ويرد عليه أن لا نسلم أن المماثلة تثبت بالقدر والجنس فقط، تثبت بالقدر والجنس فقط، بل لا بد أن تكون في الوصف أيضا، وهو الجودة والرداءة. فأجاب بقوله وسقطت قيمة الجودة بالنص، وهو قوله عليه السلام: جيدها ورديها سواء. هذا حكم النص، أي كون الداعي إلى وجوب التصفية والقدر والجنس ثابت بإشارة النص لا بمجرد الرأي. فالمراد بهذا حكم الثاني غير ما أريد بالحكم الأول، لأن الحكم الأول هو الحكم الشرعي أعني وجوب التصفية، وهذا الحكم هو بمعنى مدلول النص شامل للحكم والعلة جميعا. ووجدنا الأرز وغيره أمثالا متساوية، فكان الفضل على المماثلة فيها فضلا
खालियन अनिल औद फी अनिल अइवज़ अनिल अइवज़ फी अक़दिल बय्य मिस्ल हुक्म नस। जी। फलज़मना इस्बातु फलज़िमना फलज़िमना इस्बातु आई इस्बात हुक्म नस व वजूबुल मुसावात हुक्म नस। व हुर्मतुर रिबा फीमा अदल अशियाइ सित्तत मिनल अरुज़ व गैरि मिनल मकीनात वल मौज़ूनात सवाउन काना मत्'ूमन औ गैर मत्'ूमिन बिशर्ति वजूदिल क़द्र वल जिन्स। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। तो आपके ज़हन में होगा कि मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह हुज्जियत क़ियास के हवाले से बात कर रहे हैं। तो अक़ली दलाइल मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह पेश कर रहे थे। तो अक़ली दलाइल में से एक अक़ली दलील ये थी कि ये जो इस्तिआरात होते हैं, इस्तिआरात, ठीक है, तो इनसे भी क़ियास साबित होता है, क्योंकि इस्तिआरा जो होता है ना, उसमें क्या होता है, एक चीज़ का नाम दूसरी चीज़ को दिया जाता है, एक चीज़ का हुक्म दूसरी चीज़ पर लगाया जाता है, इलाक़े की वजह से, तशबीह की वजह से। तो ये भी क़ियास शरई की मिसाल, ऐसे उन्होंने मिसाल दी असद की। असद जो है ना, वो तो एक मालूम ढांचा है। अब उसके अंदर बहादुरी मशहूर है। वो किसी बहादुर इंसान को असद का नाम दे देना, दोनों की तरफ इल्लत मुश्तरका क्या है, वो शुजाअत, बहादुरी। तो इस्तिआरात से भी क्या है, क़ियास साबित होता है। अच्छा, अब मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने फरमाया कि फ़अतबिरू या उलिल अबसार। यहाँ से क़ियास की हुज्जियत साबित कर रहे थे और फरमाया कि एतबार कहते हैं रद्दु शैइ इला नज़ीरिही को, कि चीज़ को उसकी नज़ीर की तरफ लौटाना। अब इसको क़ियास कहते हैं, यानी रद्दु शैइ इला नज़ीरिही, ये एतबार है, इसको एतबार कहते हैं और इसी को क़ियास कहा जाता है। तो कहाँ से ये बात साबित हो गई, इसको क़ियास कहते हैं। तो ये इसके दलील मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये बात साबित है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की वजह से। कौन सी हदीस? जो मशहूर हदीस है अशिया सित्ता वाली, उसमें ये बात साबित है। वो कौन सी हदीस है कि अल-हिंततु बिल-हिंतति वश-शईरु बिश-शईरि वत-तमरु बित-तमरि वल-मिल्हु बिल-मिल्हि वज़-ज़हबु बिज़-ज़हबि वल-फ़िद्दतु बिल-फ़िद्दति मसलन बिमसलिन यदन बियदिन वल-फ़ज़्लु रिबा। कि गंदम का बदला गंदम के साथ, जौ का बदला जौ के साथ, खजूर का बदला खजूर के साथ, नमक का बदला नमक के साथ, सोने का बदला सोने के साथ और चांदी का बदला चांदी के साथ जब हो, तो फिर क्या हो, मसलन बेमसल। ठीक है जी, तमासुल क्या है, ज़रूरी है, इन बराबर सराबर, यादम बेयदिन, हाथ दर हाथ, तो उसी वक्त कब्ज़ा हो जाए, वल फ़ज़्लु रिबा, और जो इजाफ़ा होगा वो क्या समझा जाएगा, सूद होगा, रिबा होगा। तो ये से बात साबित होगी रद्दु शैइ इला नज़ीरिही वाली। फरमाते हैं कि
जिन्स का तबादला जिन्स के साथ हो रहा है। एक रिवायत में यहाँ पर तो है ना कि मसलन बेमसलन यदम बेदिन वल फज़ल, एक रिवायत में कैलन बेकैलिन व वज़नन बेवज़न, कैली चीज़ का तबादला कैली की चीज़ के साथ, वज़न चीज़ के साथ वज़न चीज़ के साथ। अच्छा, और दूसरी बात अलहिंता, तो इसको मरफू भी पढ़ा गया है और अलहिंता था इसको मंसूब भी पढ़ा जाता है। अगर अलहिंता तो बिलहिंता तो शायर बशायर ज़ाहिर है कि फ़कीर का भी यही हुक्म होगा, एराब एक ही होगा, ये सारे मातूफ़ है, बाकी सारे मातूफ़ अलहिंता तो बिलहिंता पर। तो अगर मरफू पढ़ेंगे तो उस सूरत में ये होगा नाइब फ़ाइल, ठीक है। किसके नाइब फ़ाइल होगा? बिआ के लिए, तो मतलब होगा बिआ अलहिंततु बिलहिंतति, ठीक है, कि बेचा जाएगा गंदम को गंदम के बदले में, जौ को जौ के बदले में, वगैरह ज़ालिका। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और मंसूब भी पढ़ा गया। अगर मंसूब पढ़ेंगे तो सूरत में क्या होगा? मफ़ऊल बनेगा। तो गोया के फिर बिअ मुक़द्दर पहले सूरत में नाइब फिर मजहूल मुक़द्दर माना पड़ेगा, इस सूरत में बिअ अमर का सीगा, जा अमर का सीगा मुक़द्दर माना पड़ेगा, और अलहिंतत बिलहिंतति व शाइर बिशाइर, तो ये क्या बनेगा? मफ़ऊल बनेगा। यहाँ तक बात समझ आगे कि नहीं आई? अच्छा जी, तो फरमाते हैं कि हिंता जो है ना, ये मकीली चीज़ है, इसको कैल के साथ बेच सकते हैं। इसका तबादला हिंता अपने जिन्स के साथ हो रहा है, इस तरह जौ का तबादला अपने जिन्स के साथ। और फरमाते हैं मसलन बेमसलन, ये मक़बल से क्या है? हाल है, यानी हिंता से, गंदम से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गोया कि ये कहा गया कि तुम बेचो गंदम को गंदम के बदले, इस हाल में कि दोनों क्या हो? मुतमासिलतैन हो, मुतमासिल, मुमासलत पाई जाती है, बराबरी पाई जाती है इनमें। अब फरमाते वल अहवाल शुरूत वल अम्र अल ईजाब वल बैअ मुबाह। वल अहवाल शुरूत, जो हाल बन रहा होता है ना, हाल जुमले में जो हाल बन रहा होता है, तो इसकी हैसियत शर्त की होती है, शर्त की, यानी गोया के सारे जुमले का महवर वो हाल होता है। अब वो आगे जाके बंद करते हैं, एक मिनट। अमर इजाब के लिए, यानी यहाँ पर अमर है ना, बिउल हिंता बिलहिंता, कि तुम बेचो, लेकिन इस हाल में कि तुम क्या? बराबर। ये बराबरी जो है ये वाजिब है, ये बराबरी क्या? वाजिब है। बै मुबाह है, बै करना ज़रूरी नहीं कि तुम खामखा बै करो, बै करना ज़रूरी नहीं है, बै करो या ना करो। कोई शख्स ऐसा है जो सारी ज़िंदगी बै ना करे पूरी ज़िंदगी, लेकिन जब करनी है तो फिर उस सूरत में तस्वीर ज़रूरी है, बराबरी ज़रूरी। तो असल में जो है ना वजूब यहाँ पर इसमें तस्वीर का है, बै का नहीं है, बै करो या ना करो, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो आप फरमाते फ़यंसरिफ़ुल अम्रु इलल हाल लती ही शर्त, अमर लौटेगा उस हाल की तरफ जो शर्त के माना में है। तो अब माना क्या होगा कि बै का वजूब जो है ना, ये तस्वीर के साथ है, मुमासलत के साथ है।
यानी तुमने अगर बै करनी है इन चीज़ों के बदले में बेचना है तो फिर बराबरी क्या है, ज़रूरी है, वाजिब है। बराबरी वाजिब है, बै वाजिब नहीं। जैसे कि अपनी बीवी से कहता है कि अंति तालिक़ुन इन कुन्ति राकिबतन, या यह कि अंति तालिक़ुन राकिबतन, अंति तालिक़ुन राकिबतन। ये राकिबतन क्या बन रहा है जी? हाल बन रहा है। तो अभी हाल जो होता है ना, ये शर्त के माने में होता है, ये महवर होता है पूरे जुमले का। तुझे तलाक हो कब? इस हाल में कि जब तुम क्या हो, सवार। अब तलाक तब होगी जब बीवी सवार होगी, उसके अलावा नहीं। अंत तालिक़ुन उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। हाँ, सवारी की सूरत में तलाक वाक़ई होगी, अगर ना उसके अलावा अंत तालिक़ुन ने काम नहीं करना। तो पता चला ना कि जो हाल होता है ना वो शर्त के दर्जे में होता है, वो महवर होता है उस जुमले का। तो ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर मसलन बेमसलिन, ये हाल है मक़बल गंदम से, तो ये महवर है। यानी बै करनी है तो फिर तस्वीर ज़रूरी है, बै करो ना करो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब इन चीज़ों के आपस में बै करनी है, तबादला करना है, तो फिर क्या ज़रूरी है, तस्वीर ज़रूरी है। ये बात समझ आ गई कि नहीं आई? और फरमाते वराद बिलमिसल, मसलन बेमसल से मुराद जो है ना कदर है। यानी अगर माकिलात में कैल मुराद है और मौजूनात में वज़न मुराद है, मुतलक जो है ना वो मिक़दार मुराद नहीं है, बल्कि कम से कम कैल में हो, कदर हो कम से कम। और वो कम से कम क्या है, जो चीज़ कैल में आ जाए वो निस्फ़ सा है। समझ आ के नहीं कि निस्फ़ सा से कम जो है ना वो कैल में चीज़ नहीं है, तो कैल नहीं होता। कैसे पता चला कि मसलन बेमसलन से मुराद कदर है? इस वजह से कि उन्होंने कहा कि एक रिवायत में कैलन बेकैलिन वाज़े तौर पर आया है। समझ आ गई? तो कैलन बेकैलिन मसलन बेमसलन की जगह, तो कैल और वज़न ये कदर में आते हैं ना ये चीज़, इसलिए फरमाया मसलन बेमसल से मुराद क्या है, कदर है। तो अब जो चीज़ कदर में आए यानी कम से कम निस्फ़ सा, अब अगर आप इजाफा करेंगे तो वो रिबा है। यानी एक तरफ खजूर है निस्फ़ सा और दूसरी तरफ खजूर है 1 सा, तो ये सूद है। अगर कैल से कम का निस्फ़ सा से कम इजाफा करें तो वो इजाफा जायज़ होगा, वो नाजायज़ नहीं होगा। या फरमाते एक मुट्ठी की भाई, एक मुट्ठी के भाई 2 मुट्ठियों के बदले में जायज़ है। एक मुट्ठी खजूर दे रहे हैं, ठीक है, और 2 मुट्ठियाँ ले रहे हैं खजूर की। एक मुट्ठी गंदम की दे रहे हैं, 2 मुट्ठियाँ ले रहे हैं, जौ की दे रहे तो चूँकि ये कैल से कम निस्फ़ से कम है ना, कैल में आते नहीं, लिहाजा हमारे यहाँ ये जायज़ है। लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह क्या है, जायज़ नहीं क्या। तो फरमाया सुम्मल हुर्मतु बिनाउन अला फ़वाति हुक्मिल अम्र। फिर फरमाते हैं कि हुर्मत की बुनियाद होगी अमर के हुक्म के फ़ौत होने पर। यानी अमर का हुक्म क्या है, तस्विया। जब तस्विया फ़ौत हो जाएगा, ख़त्म होगा, तो हुर्मत साबित होगी। यानी जब बराबरी नहीं होगी, इजाफा होगा, तो फिर हुर्मत का हुक्म लागू होगा, वो बै क्या होगी, हराम होगी, उसको सूद शुमार करेंगे। तो फरमाते हादा हुक्मुन नस, फरमाते हैं ये नस का हुक्म है।
यानी तस्वीर का वाजिब होना, मुसावात का वाजिब होना, या हुक्म का नस का हुक्म। और वलइल्लतुल बाइसतु अला वुजूब तस्मिया, जो चीज़ तस्मिया को बराबरी को वाजिब कर रही है वो कदर और जिन्स। इसलिए फरमाते हैं कि तस्वीर का वाजिब होना कदर में इन अमवाल में तकाज़ा करता है कि वो एक जैसी हो और बराबर, और ये नहीं हो सकता एक जैसे और बराबर हो मगर जब कदर हो और जिन्स पाई जाए। इसलिए कि मुमासलत जो है ना, कि मुमासलत ही कायम होती है सूरत और माना के साथ। क्योंकि मुमासलत की दो सूरतें हैं, मुमासलत सूरिया, मुमासलत मानविया। और ये कदर और जिन्स के साथ ही हो सकते हैं, क्योंकि मुमासलत सूरिया कायम होती है कदर के साथ और मुमासलत मानविया कायम होती है जिन्स के साथ। समझ आ गई? अच्छा, हमें कैसे पता चला कि जिन्स का जब एक होना ज़रूरी है, जिन्स जब रिबा के लिए जिन्स एक हो और इजाफा हो तो फिर ये रिबा शुमार होगा। जिन्स का एक होना ज़रूरी है, ये कैसे पता चला हमें? तो फरमाते इस हदीस से अलहिंता तो बिलहिंता थे कि हिंता का मुकाबला किसके साथ किया जा रहा है? हिंता के साथ। शाइर का मुकाबला हो रहा है शाइर के साथ, मिल्ह का हो रहा है मिल्ह के साथ। तो हमें पता चला एक जिन्स का होना ज़रूरी है। वो कदर का होना ज़रूरी है, कैसे पता चला हमें? मसलन बे मसलन, इसलिए कि हमने पढ़ा कि एक रिवायत में क्या है, कैलन बे कैलन। तो ये दोनों चीज़ें जिन्स और कदर मालूम हुई है इस अशिया सित्ता वाले हदीस से। जिन्स भी इस हदीस से मालूम हो रही है, कदर भी। इस वजह से हनाफ ने इन अशिया सित्ता वाले हदीस में गौर करके, इन अशिया सित्ता में गौर करके कदर माल जिन्स इल्लत निकाली, रिबा की बात और निकाली। फरमाते कि अगर जिन्स एक ना हो, मसलन एक तरफ तबादला हो रहा है गंदम का और दूसरी तरफ से दिया जा रहा है जौ, या गंदम और चावल है, तो जिन्स एक नहीं है। अब अगर इजाफा होगा, मसलन एक तरफ है 5 मन गंदम, ठीक है, दूसरी तरफ है 10 मन चावल, तो रिबा नहीं होगा, इसको रिबा नहीं कहेंगे। इस तरह अगर कदर नहीं है तो भी रिबा नहीं होगा। मसलन अददियात है, ज़वातुल क़ियम में से कोई चीज़ है, ज़वातुल अमसाल में से नहीं है। मसलन बकरी है, एक तरफ बकरी है मोटी ताजी बड़ी, और दूसरी तरफ बकरी है पतली दुबली, तो तबादला कर सकते, ये रिबा नहीं है। देखिएगा, एक तरफ गोश्त ज़्यादा होगा उसमें, इसमें कम होगा, लेकिन रिबा नहीं है। खजूर में ऐसा करेंगे, एक तरफ ज़्यादा इसमें कम, तो रिबा होगा। लेकिन जब कदर फौत, ठीक है, कदर की शर्त फौत हो गई, तो फजल जो है ना वो जायज़ हो। समझ आ गई कि नहीं है? आगे फरमाते हैं कि हमें तस्लीम नहीं है बात कि मुमासलत सिर्फ़ कदर और जिन्स से कायम होती है, साबित होती है, बल्कि उसके लिए वसफ़ का एक होना भी ज़रूरी है।
लिहाजा जौदत और रिदाअत का भी एतबार किया जाए कि उम्दा खजूर है तो उसका बाद आजवा खजूर है तो उसका तबादला आजवा खजूर के बदले में और फजल रिबा होगा। और अजवा है उम्दा खजूर है उसका तबादला किसी रद्दी खजूर के साथ है तो यहाँ पर अगर फजल है इजाफा तो रिबा नहीं होना चाहिए। इस तरह रद्दी खजूर है रद्दी खजूर के साथ हो उम्दा के साथ हो तो नहीं होना चाहिए। तो उसका जवाब भी दे रहे कि वसफ़ का एतबार साक़ित है, वसफ़ का एतबार नहीं किया जाएगा। खजूर एक जिन्स शुमार होगी सारी। अगर एक खजूर है 1 किलो 100 रियाल का है और दूसरी तरफ खजूर है वो 1 किलो 10 रियाल का है, समझ आ गई। अगर इनका भी आपस में तबादला होगा, मसलन जो 100 रियाल वाली खजूर है वो 2 सा है और जो 10 रियाल वाली खजूर है वो 5 सा है तो भी रिबा शुमार होगा, रिबा कहलाएगा। फरमाते ये वसफ़ का एतबार साक़ित है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस की वजह से। जय्यिदुहा व रदीयुहा सवा के खजूर में जय्यिद और रदी जो है वो बराबर है। समझ आ गए कि नहीं? तो फरमाते हैं कि ये जो कदर और जिन्स जो तस्वीर को वाजिब करते हैं ये इशारत नस से साबित, ये इशारत नस से साबित हो गए ना कि मुजर्रद राय से। ये भी हुक्म नस का हुक्म है। लेकिन पहले भी कहा था आधा हुक्मुन नस, ये भी कहा आधा हुक्मुन नस, लेकिन जो दूसरी ये कहा है ना आधा हुक्मुन नस ये और है, इससे मुराद और है, जो पहले से है वो मुराद नहीं है। इसलिए कि जो पहले आधा हुक्मुन नस का वो हुक्म शरई है, ये नहीं तस्वीर का वाजूब। और ये जो हुक्म है ये नस का मदलूल है, नस इस पर दलालत करती है। और ये हुक्म और इल्लत दोनों को शामिल है, यानी जो भी तस्वीर को भी शामिल है और कदर और जिन्स को भी शामिल है। और वो जो हुक्म था वो सिर्फ वो जो भी तस्वीर को शामिल है। लिहाजा मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमने पाया चावलों को, ठीक है, और जैसी और चीज़ों को अमसाल एक जैसी और बराबर, लिहाजा जो इजाफा होगा वो रिबा शुमार होगा। लिहाजा अगर चावल के बदले चावल को बेचा जा रहा है तो बराबरी ज़रूरी है। 5 मन चावलों को 5 मन चावलों के बदले में बेचना ज़रूरी है। चाहे एक तरफ बनास्पति है, दूसरी तरफ जो है वो उस दर्जे के नहीं है, कायनात है, सुपर है, सिला चावल है, गैर सिला चावल है, ठीक है। तो लेकिन 5 मन तो 5 मन ज़रूर है। आगे एक तरफ 5 मन चावल है, दूसरी तरफ 10 मन चावल है तो ये रिबा होगा। समझ आगे कि नहीं आई? अच्छा जी, अब ज़रा देख लीजिए। मैं खैर तर्जमा तो आ ही गया, अब करने की ज़रूरत है कि नहीं जी? तर्जुमा कर ले ना कर, हाँ जी, ठीक है। अब इसका तकरार कर लो शायद जी। वमा अलैना सादा Thank you.